Assalamu alaikum everyone, welcome to my session, and let me just go on Facebook and see who's live with me over here. And in the meantime, those of you who are watching me already, do let me know in the inbox whether you're from Pakistan or you're from abroad or you belong from any other province of Pakistan. So I'll be just back in a jiffy till you can, just text your messages. And today I made sure that I won't be late. So I'm here. Okay. Okay, so actually, I just forgot to mention the time that I'll be live at 8 p.m. But I thought maybe most of you already know that I come live at 8 p.m. So you'll be here. But I think maybe I can, go and, let everyone know that I'm live. But I'm sure they'll be here. There's still, I guess, 2 minutes. So what do you think about the topic? So today's topic is very clear, like it's about growth and change. So what do you think about growth and change? So anyone has any idea or you want to, just pour in your suggestions or comments what you think about growth and change, so you can use the inbox and let me know as well. Okay, right. So, do you have any question regarding yesterday's topic? Yesterday's topic was regarding sleep and the importance of sleep and how lack of sleep can cause so much deprivations and so much, malfunction of things in our body. So, if you have any comments regarding that, then you can also, pour in your comments in the comment box. And if you do not have any, then we can, just start with our session. Okay. It's just going to be 8 o'clock, and I can, still wait for 1 to 2 minutes till everyone comes live, and then I can start. Okay. So I'm just going to leave the message, and then I can just, start with the session. Now, I'm sure it's not going to be that boring that I can't see anyone over here. Um, Rather, it's going to be interesting and it's going to be eye opening as well. So it's totally up to you. Maybe it's not something which you enjoy or you want me to talk about, but overall it's important, and it's really good when you keep on exploring different topics and different, you come up with different ideas and you study different philosophies, and even you study different subjects, though those are not your expertise, but still you like to know about them, and it's a good thing. You keep on updating yourself. So now I can see someone who's watching, and you can let me know. But in the meantime, I just left this message on Facebook that I'm live, because earlier I did not mention the time, but 8 o'clock is the time, and so I'm live over here. And today's topic, as I was saying, that it's always good to keep on exploring, keep on improving yourself. Like the topic, it's about change and about growth. So that's what we are going to talk about. And the first thing in this whole scenario is that as a person you need to embrace change. और जब आप embrace करते हैं change, क्योंकि change is something that is inevitable, and you cannot stop that change. You might have been noticing and observing this right from your childhood. Like when you're a baby, you don't remain a baby for your whole life. Eventually you do grow up.
So the same thing is with life. Life keeps on changing. Alicia, thank you so much for joining and watching this session. So you keep on changing, and you need to embrace that change, and you need to improve upon yourself as well, whether it's related with professional growth or whether it's related with personal growth. So जो challenges होती हैं, they help us in adapting to new challenges and new circumstances, and eventually we learn new things when we are going through different changes in our lives. और ये जो changes होती हैं, they help us not only in learning new things, बल्कि they help us in discovering new things and new potentials and new opportunities. और साथ के साथ we keep on exploring ourselves, अपनी नेचर भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसको भी डिस्कवर कर रहे होते हैं, और साथ के साथ वी कीप ऑन engaging with different people, either of the same mindset or either of different mindset. So you keep on exploring and you keep on changing. Alicia, what are you saying? Okay, you are saying another day, another look. Allah bless you. Okay, thank you so much. Thank you so much for your compliment. um, Embracing change is the first thing which we need to do. For growing purposes, we need to embrace change, whatever that change is, चाहे वो personal change है, चाहे वो professional change है. Then another thing is कि भाई we need to focus on personal growth as well. और जब personal growth की बात होती है तो like पर्सनल ग्रोथ आपकी तभी होती है व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. और वो कंफर्ट जोन क्या होती है? वो कंफर्ट जोन आपका एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, जो कि राइट फ्रॉम बर्थ आप जो है इंजॉय करते आ रहे होते हो. पहले आपके पेरेंट्स आपको वो जो है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट. देन उसके बाद जिस वक्त आप बड़े होते हो, या से इफ़ यू गेट मैरिड, तो फिर वो जो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है वो आपके हस्बैंड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, या आपकी जो फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वो आपको प्रोवाइड करती है. बट इफ़ यू वांट टू परस्यू योर गोल्स, या आपके कोई विजन्स हैं, या आपके कोई एम्बिशंस है इन लाइफ, सो यू नीड टू मूव आउट ऑफ दोज कंफर्ट जोन्स. क्योंकि घर की चार दीवारी में बैठे हुए या कंफर्ट जोन में बैठे हुए, you cannot give lectures, या you cannot say things unless and until you yourself are out in the field. क्योंकि if you are in the field, you know what are the hardships of field, और field में किस तरह survive किया जाता है. So these are the personal growths जो आप तब ही कर सकते हैं when you move out of your comfort zone. अगर आपने जो ज़िंदगी में कुछ करना है तो देन यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी कंफर्टेबल हो. अब आप ये देखें कि बहुत से लोग गुजरे हैं हमारे बुज़ुर्गों में भी, एंड जो हमारे हीरोज़ भी हैं या हीरोइंस भी हैं, वो सब वो लोग थे, अक्सर उनमें से वो लोग थे हु लेफ्ट देयर कंफर्टेबल लाइव्स. अगर किसी का जो है कोई मिशन होता है, कोई पॉजिटिविटी इम्पैक्ट करना चाह रहा होता है दुनिया में या सोसाइटी में, तो दे हैव टू लीव देयर कंफर्ट जोन. वो अपनी आराम दे ज़िंदगी को छोड़ कर ही कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं. अपनी आरामदेह ज़िंदगी से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. रिगार्डिंग पर्सनल ग्रोथ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड कि ग्रोथ जो है कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं होती. अच्छा, देन इसमें जो है एक और चीज़ जो आ जाती है कि जब हम पर्सनल ग्रोथ को परस्यू करते हैं, तो जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं, वो चैलेंजेस हमें जो है डिप्रेस करने के लिए नहीं होते. रादर उन चैलेंजेस में हमने अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होती हैं, एंड एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी. और वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनता है कि जब आपको चैलेंजेस फेस होते हैं, तो यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सोल्यूशंस to problems. And when you can come up with certain problems, certain solutions to certain problems, then you are you become a diamond. जिस तरीके से जो है डायमंड जब तक क्रूड फॉर्म में होता है, तो नो वन नोज इट्स अ डायमंड, क्योंकि इट हैजंट गॉन थ्रू द चैलेंजेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इट हैजंट बीन पॉलिश्ड, और रगड़ा नहीं जाता. सिमिलरली जो ह्यूमन लाइफ होती है और इंसान होते हैं, वो जब तक जो है ज़माने की ठोकरें और ठुड्डे और तंगियाँ नहीं बर्दाश्त करते, तब तक दे डोंट बिकम अ फाइन पर्सन. सो द फाइनर पर्सन यू आर, द मोर फाइनर यू बिकम, उतने ज़्यादा आपने जो है
आपके जो बैकग्राउंड होता है या आपके जो बायोग्राफीज़ होती हैं, जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो बताते हैं कि भाई उन सारे एक्सपीरियंसेस ने आपको कितना तराशा है और कितना आप फाइन पर्सन बनते हैं. सो वो सारे जो है धक्के और डिफ़िकल्टीज़ और रियलिटीज़ लाइफ की बर्दाश्त करते करते फिर फाइनली यू बिकम अ फाइन पर्सन. सो एवरी चैलेंज, it's an opportunity, and you need to shine out of that opportunity. You need to grasp that challenge and turn it into an opportunity for yourself. Rabia Ahmed, thank you so much for joining and watching. So these are the things regarding personal growth, कि you have to take every challenge and you need to overcome that challenge. फिर ही आप जो है ना एक फाइन एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना पहचाने जाओगे, या यू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल. And then जो when you are reflecting on your past experiences, yeah, you're even reflecting on your failures, so they show how far you have come. क्योंकि अगर जो है आप सक्सेस के किसी लेवल पे बैठे हो, तो अगेन यू आर गोइंग टू ट्रेस योर रूट्स, यू आर गोइंग टू अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्ट वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, और आज आप किस लेवल पे हो या आपने मज़ीद किस लेवल पे जाना है. सो दीज are not the obstacles, rather ये जो obstacles हैं, these are the paths जो कि आपको finally transform कर रहे हैं into what you aim to be, या आपने किस मंजिल तक पहुंचना है. क्योंकि there are times जब हमें जो है as individual अपनी मंजिल नहीं नज़र आ रही होती, but then again those people who are continuously interacting with us, या those who are our seniors या हमारे mentors होते हैं, या those who are much older than ourselves, yeah, much more experience, they exactly have the idea कि what is your capacity and where are you going, and कहाँ पर आप जो है जाकर पहुँचेंगे. So when they are motivating you, to take it as a sign and be grateful that they are there to motivate you, and have this gratitude, have this thing of saying thank you, rather than कि भाई अगर कोई आपकी like I will not give example of anyone, I can just quote my own example. Like I know there were many times when people used to compliment, and I would divert the compliment to different sides. बट ये है कि द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू आर वर्थ इट, चाहे वो जो है कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, तो यू विल सी कि भाई आपकी ज़िंदगी में किस तरह चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. ये जो बेसिक चीज़ होती है एक्सेप्टिंग, अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं आती, तो देन देर आर मैनी थिंग्स विच यू जस्ट सिंपली मिस, क्योंकि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. सो यू नीड टू एक्सेप्ट जो आपको जो है तारीफ़ मिली है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर वर्थ इट, कि आपको वो तारीफ़ मिली है, रादर देन क्योंकि देर आर सो मैनी टाइम्स व्हेन आप अपनी ज़िंदगी में यू आर वैलिडेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल अबाउट सर्टेन थिंग्स, अबाउट द वर्क यू डू, या अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, या इवन इफ यू हैव डन समथिंग गुड. So instead of looking for those validations, when someone compliments you, have this thing of being grateful and saying thank you, क्योंकि that is when you start accepting yourself and you start accepting कि what you are doing, it's worth the praise and you are grateful for that. दिस इज़ रिगार्डिंग पर्सनल ग्रोथ. अच्छा देन अगर हम जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ देखें, तो अगेन उसमें भी चेंज एंड ग्रोथ इट्स वेरी नेसेसरी. क्योंकि आप ये चीज़ अक्सर देखते होंगे कि व्हेन वी चेंज और वी स्विच करियर्स, व्हेन वी स्विच फ्रॉम वन करियर टू अनदर करियर, तो उसमें देन अगेन वी आर अगेन फेस विद मैनी डिफिकल्टीज एंड मैनी ऑब्स्टिकल्स, बट देन अगेन वी हैव टू ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स, वी हैव टू टेक दोज चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर सेल्फ. और वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस तरह नहीं होता कि हम उन एक्सपीरियंस को भुला कर फिर एक जो है ना नई जॉब जो है स्टार्ट करें. रादर वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ चलती हैं, एंड वी लर्न सो मच फ्रॉम दोज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड ये जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये एक चेन की तरह आपके साथ चलती हैं. आप किसी भी रोल में चले जाएं, मोर और लेस कहीं ना कहीं आपके वो एक्सपीरियंसेस आपको काम आते हैं, एंड इट फॉर्म्स अ चेन एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट. सो कभी आप ये ना सोचेंगे भाई आप करियर स्विच करेंगे, या आप जो है एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ जो है कुछ करने का ठानते हैं, तो आपके वो पास एक्सपीरियंसेस ज़ाया हो जाएंगे. वो कभी भी ज़ाया नहीं होते. वो आपको आप
अनकॉन्शियसली देखेंगे कि बहुत से आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस कर रहे होंगे जिसमें वही पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके काम आ रहे होंगे, क्योंकि देन यू वुड हैव बिकम फाइन डायमंड, जो कि उन एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने न्यू एक्सपीरियंसेस में. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट. दैट इज़ हाउ यू ग्रूम इन योर प्रोफेशनल लाइफ्स, कि आप पुराने एक्सपीरियंसेस को नए एक्सपीरियंस के साथ इनकलकेट करते हैं, मज़ीद नई चीज़ें सीखते हैं, और वो आपके स्किल्स जो है मज़ीद पॉलिश होते जाते हैं. एंड दैट मेक्स यू अ डिफाइंड पर्सन. सो जब आप जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करती हैं, देन अगेन यू नीड टू सीक आउट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. कोई भी करियर ऐसा नहीं होता जिसमें आप कहें कि लाइक इफ़ यू हैव डन अ मास्टर्स और आपको उसकी बेस पे जो है लाइक टीचिंग जॉब मिल गई है, सो वो जो टीचिंग जॉब है, यू आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन योर मास्टर्स व्हेन यू आर डूइंग दैट टीचिंग जॉब. जब आप वो जॉब कर रहे होंगे, देन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए जो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ होंगे या आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी, यू आर गोइंग टू अपडेट योर नॉलेज अकॉर्डिंगली. आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके जो लर्नर्स होंगे, आपने उसके मुताबिक अपने जो स्टडीज़ हैं या अपनी लर्निंग है उसको ग्रूम करना होगा. इफ़ यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन द ओल्ड स्ट्रैटेजीज, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. रादर नतीजा क्या होगा, यू विल बी किक्ड आउट. और अगर आप किक्ड आउट ना हुए तो आपके जो स्टूडेंट्स होंगे या लर्नर्स होंगे, वही कहेंगे नहीं भी हमें इन टीचर का नहीं समझ आता, हम नहीं जो है इनके साथ जो है पढ़ना चाहते, सो इनको जो है चेंज करें. तो दिस हैपन्स अ लॉट इन private sectors. So you have to keep on updating yourself, updating your professional capacity, updating your skills. So नई सी नई जो है skills आती जा रही हैं with time. टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, if you are not going to use technology in your favor, तो फिर आप ये जो एक कंपटीशन है इसकी रेस में आप बहुत पीछे रह जाएंगे. So you have to be able to um, coexist with the technology and the new technologies and the new strategies as well. Alicia, what are you saying? Continually examine the Holy Quran and educational books for your highest priority growth. Strive to make growth a constant and consistent part of your life. Tackle your growth needs through specific short-term goals. Yes, you are very much right. क्योंकि देखिए नाउ जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो कंटिन्यूस स्टडी है और जो कंटिन्यूस लर्निंग है, यू यानी बीइंग अ मुस्लिम, यू कंटिन्यूसली रेफर बैक टू कुरान. और कुरान में आपको जो है ना ऐसी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, लाइक जो अब लोग जो है बीइंग जो साइंटिस्ट हैं, दे आर डिस्कवरिंग दोज थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि दे देमसेल्व्स एज साइंटिस्ट आर स्टडिंग द होली कुरान. बट एज अ मुस्लिम आपके पास तो ये नॉलेज जो है राइट फ्रॉम स्टार्ट है. सो व्हेन आर यू गोइंग टू ओपन योर आइज, व्हेन आर यू गोइंग टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? सो रादर देन कि साइंटिस्ट जो है या जो फॉरेन साइड पे जो है लोग हैं, बजाय वो इसको स्टडी करें, why not we as Muslims can study it? And then those people who are using Quran Pak, who are interpreting it in the right sense, and making a use of it in their day-to-day lives with the subjects already they have studied. So they are much they're at a much advanced level. So that is very much right कि भाई अगर आपने अपने कोई भी goals achieve करने हैं, तो you have to go back to the study of Quran. You have to see in the light of Quran उस चीज़ के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में या ओवरऑल जो डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ हैं उसके बारे में जो है कुरान पाक में जो है क्या लिखा हुआ है, एंड यू हैव टू इंटरप्रेट इट. क्योंकि अगर आप उसको इंटरप्रेट कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. अच्छा, देन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, कि आपका ग्रोथ माइंडसेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो देन यू विल एक्सेल इवेंचुअली. आप किसी भी जो है प्रोफेशनल साइड पे चले जाएं. बट अगर माइंडसेट ही आपका ग्रोथ वाला नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट कल्चर. और ज़्यादा देर के लिए क्या, थोड़ी देर के लिए भी नहीं, तो फिर एंड रिजल्ट क्या होगा? इफ़ यू आर अनएबल टू सर्वाइव इन दैट कल्चर, आपका माइंड नहीं डेवलप होगा, प्रोफेशनली नहीं कूप अप कर सकेंगे, सो इवेंचुअली यू विल सिट बैक एट होम. So you don't want that. You want to excel in your life. You want to achieve the unattainable goals. Everyone has many unattainable goals, but
अचीव वही करता है जो कि अपने माइंडसेट को जो है ग्रो करता है, उसमें पॉजिटिविटी आने देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे डू थिंग्स व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट. दे डोंट वो सुर्ख बत्ती के पीछे नहीं लग जाता कि ओके ये बॉस ने ये बात कही है तो बॉस सही कह रहे हैं एंड वी हैव टू फॉलो इट. यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू सी whether the boss is right or not. So if you know the boss is not right, you are not going to sell yourself, you're not going to sell your self respect. But then अगर आपने वो जो है close mindset वाला scenario रखना है and you want to blindly follow the boss, then you have to sell your self respect. So you have to keep this in mind. If you are not the person who is ready to sell their self respect, then you have to think out of the box, and then you have to make ways for yourself to pace your own self growth. और उस self growth में you have to take other people with you. But then if you are the kind of person who just wants the salary and you don't want to do anything, so then you have to sell your self respect. अच्छा, सो अगेन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ कल्चरल एंड सोसाइटल चेंज फॉर ग्रोथ एंड चेंज जो है ना. अब इसमें कल्चर और सोसाइटी का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है. सोसाइटीज़ जो है दे इवॉल्व ओवर टाइम, और देन अगेन सोसाइटीज़ में यू हैव टू अडॉप्ट टू न्यू वैल्यूज़, न्यू कल्चर्स. तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को इंक्लूसिव रखेंगे और डाइवर्सिटी को एंटरटेन करेंगे, यू विल बी एबल टू rise above your means and you'll be able to achieve your goals in life. बट अगर आप जो है सोसाइटीज़ को इवॉल्व नहीं होने देंगे, इंक्लूसिविटी जो है नहीं करेंगे, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे. देन you will be at one extreme, and the one who are successful, those are going to be at the other extreme, and you don't want to be categorized as an extremist person. So you have to take the middle way. Again इसमें भी जो है interpretation of Quran आ जाती है. You have to follow what the Quran says about moderation and how you can lead a successful life if you are following the interpretation of Quran in this right way. एंड देन अगेन जब आप जो है लोगों के साथ रह रहे होते हैं, लाइक व्हेन यू गो अब्रॉड एंड स्टडी, तो you come up with so many examples, and you meet so many different peoples of different nationalities. अगर बेस आप उनकी ट्रेस करें तो the base is about goodness. ये तो जो फ़र्क़ात हैं और डिस्क्रिमिनेशन है और जो सेक्स हैं, ये तो जो है अब जो है जहनों में जो है लोगों के चले गए हैं. There are many good people, and agar you just go on the base level of every society, so mostly societies, they are good societies, but you need to have this thing in yourself कि you need to be in harmony with other people rather than enforcing yourself or enforcing your views on people. So जब आप जो है diversity को जो है inclusive बना रहे होते हैं, and you are appreciating people no matter उनके क्या religious background है, क्या economical background है, तो then आपका जो mindset है और जो आपका mind है और जो आपका knowledge है, वो एक नए लेवल में जो है ना broaden हो रहा होता है. So you need to keep these things in mind, and this is how you can evolve and be successful in the cultural and societal space. अच्छा, then आप ये देखेंगे कि सोसाइटी में इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव सोसाइटल चेंज, तो वो आप पे जो है अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करता है. बट देन इफ़ दी ओवरऑल सोसाइटी इज़ नेगेटिव, तो वो फिर आप पे किस तरह इफेक्ट करेगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दोस निटी-ग्रिटीज़. एंड देन इसमें ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज में देन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ओवरकमिंग चैलेंजेस. जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया कि भाई यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज. सिमिलरली ओवरकमिंग चैलेंजेस जो है वो हर एरिया में होती है. जब भी आप ग्रो कर रहे होते हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, इवन पर्सनली भी आप ग्रो कर रहे हो या ग्रूम कर रहे हो, तो यू विल बी facing many challenges, and you have to overcome those challenges and obstacles. Don't be negative, don't take them as derogatory. जो भी setbacks होते हैं, जो भी challenges आपको आते हैं, क्योंकि ये जो challenges हैं ये हमारे लिए opportunities हैं, ये हमें help करती हैं how we can grow in life, how we can become more successful and more resilient towards these challenges.
So for that purpose you need to have a good rapport with people, you need to have a supportive network with people as well. एंड देन जहाँ पर आपको ज़रूरत हो हेल्प की, यू हैव टू सीक दैट हेल्प, चाहे वो हेल्प आपकी अपनी कम्युनिटी से हो या चाहे वो जो है किसी और कम्युनिटी से हो या किसी और जो है नेशनैलिटी के लोगों से हो, यू हैव टू सीक दैट हेल्प। क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ पीपल फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, या ग्लोबली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो यू विल बी लर्निंग अ लॉट एंड यू विल बी इम्प्रूविंग अ लॉट, एंड वो जो चेंज होगी और वो जो ग्रोथ होगी, इट्स गोइंग टू बी फॉर द बेटर। Okay, Alicia, what are you saying? Professional development based on learn strategy, study, occupation, skill, career, education, training, motivation, goal. Yes, these are the things जो कि जो professional development में आती हैं, and you have to focus on these things क्योंकि ये जो learning होती है, it's not learning just by studying, it's learning when you are interacting with like-minded people, it's learning when you are interacting with the positive mindset, it's learning when you are interacting with different cultural and societal environments जो कि globally exist करते हैं, not specifically from your own country but from other countries as well. So जब आप globally लोगों को study करते हैं, उनके culture को study करते हैं, तो you tend to learn a lot regarding your professional development, और वैसे भी ओवरऑल यू कम टू नो अबाउट सो मैनी डिफरेंट थिंग्स एंड न्यू थिंग्स एंड यूनिक थिंग्स, और ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको पता चल रहे होते हैं जो शायद आपको जो है पहले कभी नहीं पता होते। क्योंकि व्हेन यू आर स्टडिंग अ स्पेसिफिक एरिया और अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो उसमें जो है आप उस तरीके से लर्निंग नहीं कर सकते या आप उस तरीके से ग्रूम नहीं कर सकते जिस तरीके से आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आकर कर सकते हैं। क्योंकि when you are coming into professional life, तो then you are learning so many things, like आप सिर्फ जो है अपनी स्टडी बेस चीज़ों पे ही फोकस नहीं कर रहे होते, rather you are focusing on different skills। अब वो स्किल्स जो है they can be anything from like personal skill, like learning photography or doing photography, या therapy, art therapy आप कर रहे हो सकते हैं, या even you might be in the digital space, you might be learning digital marketing, or you might be into social space, you might be doing social media strategy or social media marketing, या social media campaign आप कर सकते हैं, then you can be an affiliate blogger आप हो सकते हैं, या even you can be an influencer and you might be doing influencing for other people, different brands की कर सकते हैं, fashion की कर सकते हैं। So there is so much to learn and adopt in this professional field, so you keep on learning, and it's not that कि भाई आप जो है like I don't say to myself कि भाई now I'm not going to learn this, I know कि भाई I am continuously in this mode of learning and I love to learn, और मैं जो भी learn करती हूँ I like to impart it as well। So जैसे जैसे मैं learn करती जाती हूँ, and if I feel कि भाई ये चीज़ work कर रही है and this is the right way how this thing should be applied, and this is the thing how it should work, so that's why I keep on learning, upgrading myself, and in the same way I keep on imparting, ताकि जो benefit मुझे हो रहे हैं वो साथ के साथ और लोगों को भी हों। So this is all regarding overcoming challenges, and then इसमें एक जो बहुत मेजर चीज़ काम करती है, that is feedback, like whatever you are doing, आप जो है चाहे यूट्यूबिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप जो है सोशल पोस्ट बना रहे हैं, आप जो है कुछ राइट कर रहे हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, at the end of the day when people give you the feedback of what you are doing, that is what counts a lot। क्योंकि जो लोगों के फीडबैक होते हैं, डोंट थिंक कि भाई लोग आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो दैट इज़ वेरी डेरोगेटरी फॉर यू, रादर उनके जो नेगेटिविटी होती है या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, उसमें वो चीज़ें तलाश करें जो आपको मज़ीद एक्सेल करने में हेल्प करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप अपनी धुन में इतना गुम हो जाते हैं कि यू फेल टू सी कि आप कहाँ पर लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो वो जो क्रिटिसिज्म होते हैं लोगों के, दैट टेल्स यू कि भाई आप कहाँ पर गलत जा रहे हैं और कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो नेवर टेक देम एज डेरोगेटरी, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इट ऑलवेज हेल्प। जब साथ में क्रिटिसिज्म का वर्ड लग जाता है ना, तो वो वैसे ही खो जाता है। सो क्रिटिसिज्म को थोड़ा साइड पे रखकर ट्राई टेकिंग इट एज पॉजिटिवली।
Okay, Alicia, are you saying something? Okay, no. um, okay, so मज़ीद अगर हम इस पे जो है बात करें तो वही बात है, यू हैव टू बी ओपन टू फीडबैक, जिस तरीके से भी हों और जो भी हों। देन यू हैव टू अडेप्ट टू चेंज एज वेल। जिस तरीके से मैंने कहा, यू हैव टू एम्ब्रेस चेंज। लाइक जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, वी कीप ऑन चेंजिंग। अ टॉडलर, अ बेबी चेंजेस इनटू अ टॉडलर, देन एन एडल्ट, then a buzurg, or so and so forth na. So you keep on changing in your life and you need to embrace each and every moment, and with each change आप देखेंगे आप में बहुत सी जो है अच्छी चीज़ें आएंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं, बट यू कैन चेंज दोज थिंग्स। बट देन देर आर सर्टन थिंग्स जो कि विद एज आ जाती हैं, तो उसको आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, बट ऑलवेज ट्राई कि ट्राई टू हैव द मिड वे, ताकि अगर वो बुरी चीज़ें आप में आ भी जाएं तो वो आपके इर्द गिर्द वालों को जो है इरिटेट ना करें आप में। सो एज अ पर्सन यू नीड टू keep yourself moderate, and then changes are like an opportunity, so take them as opportunity and try to excel out of that. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि भाई आपकी जो ग्रोथ होती है ना, दैट इज़ अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। और वो किस तरीके से होती है, लाइक व्हेन यू आर रिलेटिंग योर लाइफ एग्जांपल्स, या व्हेन यू आर कोटिंग योर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ व्हाट हैपेंड विद यू एंड हाउ यू सक्सीडेड आउट ऑफ दोज चैलेंजेस, या आपने क्या किया, या आप आज यहाँ पर हैं तो what were the ways या what were the paths you took, और life किस तरीके से turn होती गई, and what not you did during the way. These are all your milestones, and these are all source of inspiration for other people, जो आपसे जो है आपकी बातें सुनते हैं या जो आपसे बात करते हैं। so these are all life examples and these are source of motivation for other people. हम आमतौर पे जो है ना ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जिससे लोग इंस्पायर होंगे, बट वी नेवर नो कि मे बी हमारी लाइफ में वो कुछ है जो कि लोग सुनना चाहते हैं, या वो कुछ है जिससे लोग रेजोनेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स always there are always good things, and then life is a mixture of good and bad. so आप सिर्फ जो है अच्छी चीज़ों को नहीं प्रेस करते रहते, रादर आप वो बुरी चीज़ें भी बताते हैं जो कि आपकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती हैं, क्योंकि देन इंसान एंड दिस होल यूनिवर्स एंड दिस होल लाइफ, इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ ब्लेंड ऑफ गुड एंड बैड, एंड यू हैव टू टेल द बैड एज वेल, नॉट जस्ट द गुड थिंग। क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे तो देन वो क्या शो करेगा, इट वुड simply show कि it's artificial। जिस तरीके से when you watch dramas ड्रामाज में जो है ढेर सारा मेकअप किया होता है, एंड टोटली एक आर्टिफिशियलिटी का आपको एहसास हो रहा होता है, क्योंकि वो जो एक नेचुरल ब्यूटी होती है या एक नेचुरल एहसास होता है, जिस तरीके से आप घर में घूमते हैं, यू डोंट ऑब्जर्व दोज थिंग्स डेली इन योर लाइफ, बट इन ड्रामाज वो जिस तरीके से एग्जैजुरेट हो रहा होता है, या जिस तरीके से आप एक पुतले बने होते हैं, या आपके वो जो डायलॉग्स होते हैं, लाइक वो जिस तरीके से डायलॉग्स ही आप उन्हीं को इमेजिन कर लेना कि दोज आर ऑल आर्टिफिशियल, दोज थिंग्स डू नॉट हैपन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आप इतनी मुश्किल और उर्दू नहीं बोल रहे होते, या इतनी ठेठ पंजाबी नहीं बोल रहे होते। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू कम्युनिकेट लाइक अ रियल पर्सन। सिमिलरली अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो दिस मेकअप इज़ ऑल आर्टिफिशियल, इसको उतार के जो अपना नेचुरल मुंह देखें तो यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन। सो ट्राई टू बी वेरी सिंपल, वेरी ओरिजिनल, क्योंकि आप जितना बनेंगे आप उसको जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ड्रामाज में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि इट्स जस्ट अ सीरियल, एक सीरियल ख़त्म होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, एंड वो उनके जो सेगमेंट्स में होते हैं, एंड दे आर एक्टर्स, दे हैव टू डू दैट थिंग्स। बट रियल लाइफ में जो पीपल होते हैं, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर रियल लाइफ पीपल। सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ पीपल, नॉट एज एक्टर्स। so this is regarding inspiration, एंड देन इसमें अगेन एक जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ मेंटोरिंग एंड सपोर्टिंग। मेंटोरिंग व्हेन यू आर गेनिंग दैट मेंटरशिप फ्रॉम डिफरेंट पीपल, और जो भी आपके उस्ताद रहे हैं, आई वोंट से कि एवरीवन हैज़ वन मेंटोर, देयर आर मेनी मेंटोर्स।
हर फील्ड में, हर एरिया में, हर सब्जेक्ट में आपके मेंटोर्स डिफरेंट होते हैं, बट देन you have to take those mentors along with you, and you have to be very reciprocal, and you have to be very outspoken about that, and you have to appreciate those mentors जिन्होंने आपकी लाइफ को जो है प्रोसेस करने में या चेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, रादर देन कि अगर आप जो है किसी मंजिल पे पहुंच गए हैं तो आप उधर कहें कि जी इस मंजिल पे तो मैं जो हूँ खुद पहुंची हूँ या मैं खुद पहुंचा हूँ, तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने तो खुद अपने आप को ट्रेन किया, खुद मैंने ये एजुकेशन ली। इस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी लाइफ में जब से आप पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर जब तक आप कब्र में जाते हैं, देयर इज़ समवन या देयर आर पीपल who are participating in your growth. So as a person you should never forget that कि भाई आपकी growth में who are the people who are involved, and you should always respect them, you should always be grateful to them, and you should always have gratitude for them as well. Abdul Salam, thank you so much for joining and watching this session. And then at the end जो चीज़ मैं आपको कहूँगी कि continuous learning, it's a it's a continuous process. There is not a day, there is not a single second जिसमें आप लर्न नहीं कर रहे, you are learning. आप हवा से, जिस तरह हम बच्चों के बारे में कहते हैं ना, बच्चे हवा से पिक करते हैं, इसी तरीके से एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रोन अप, यू आर लर्निंग फ्रॉम द ईयर, यू आर लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन, यू आर लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, यू आर लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। आपका हर सेकंड में जो है आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, एंड वट एवर यू आर लर्निंग ट्राई टू इम्पार्ट दैट टू अदर पीपल। जितना ज़्यादा आप उसको इम्पार्ट करेंगे, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, उसमें बरकत डलेगी, और जैसे जैसे आप लोगों को सपोर्ट करेंगे वो मज़ीद जो है बरकत डलेगी, क्योंकि ये जो नॉलेज है इट इज़ एन अमानत। जिस तरीके से इंसान की लाइफ इट्स एन अमानत, हम जो कुछ खा पी रहे हैं, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारा जो नॉलेज है, इट्स ऑल एन अमानत, एंड वी नीड टू इम्पार्ट दिस अमानत। अगर हम इसको इम्पार्ट नहीं करेंगे, अपने तक ही रखेंगे, वी बिकम माइजर, तो इससे जो है हमारा अपना तो फ़ायदा होगा पर किसी और का फ़ायदा नहीं होगा, और हमारा जो फ़ायदा है वो तब तक ही होगा जब तक हम हयात हैं। जब हम चले जाएंगे तो वी नीड टू इम्पार्ट दिस नॉलेज, ताकि जो लोग हैं, ख़ास तौर पे अभी जो टाइम्स हैं उसमें एजुकेशन इज़ वेरी टफ, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, so those who have been blessed with this education and this knowledge, they need to impart it, ताकि जो आने वाले लोग हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू everything is on the costly side, so उनका भला हो सके। सो ट्राई टू डू थिंग्स ऑन वॉलंटरी बेसिस। जितना ज़्यादा आप उसको स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा इम्पार्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू मैनी टाइम फोल्ड्स। सो मैनी फोल्डेड आप तक आएगा। मोस्टली लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, दे थिंक इट्स जस्ट फिलॉसफी, इट्स नॉट फिलॉसफी, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि जितना आप बांटते हैं आपको वापस जो है मैनी फोर टाइम्स मिलता है, अनगिनत मिलता है, और आप सोचते हैं कि भाई ये आपका जो है कहाँ से हुआ, किस तरह हुआ, तो ये जो है अल्लाह के काम है, और रिस्क की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह की है, वो इंसानों की नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच for joining, and thank you so much for your compliments as well. So this was all regarding today's session about growth and change. Now अगर आपके जो है कोई questions हैं तो you can let me know in the comment box. और अगर आज का topic it was clear to you तो वाजी वाह, आज तो मुझे पहले ही जो है emojis मिल गए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजीज एंड कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल। और अगर कोई चीज़ किसी को नहीं समझ आई कहीं पर तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, and if you people have any kind of topics which you want me to discuss in these sessions, so I would love to discuss those topics as well, so you can just let me know in the comment box. um, and agar yes, I can see someone at the top of my screen. Abdul Salam, would you like to come live on camera? I'll try to take you on camera. It's totally up to you. Okay, he just declined. And Alisha, would you like to come on camera? कल आप आना चाह रहे थे तो आपका जो है connect नहीं हुआ, and I just went offline. So if you want to come live on camera, it's totally up to you. अच्छा जी,
तो आई थिंक आज है किसने लाइव कैमरे में नहीं आना, इट्स ओके, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी at the same time at 8 p.m. with a new topic with some personal insights and professional insights. Till then, अच्छा अब्दुल साम, इट्स ओके, इंटरनेट आपका स्लो, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, नो इशू। तो तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, मॉर्निंग में इन द व्लॉग एंड इवनिंग में इंशाल्लाह इन दिस सेशन। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।